Hello, dear students. Today I am going to teach you a new topic known as standardization. Standardization of milk and milk products. सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है? जब मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट में फैट के परसेंटेज को हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड, या तो फैट परसेंटेज को बढ़ाएंगे या फैट परसेंटेज को कम करेंगे। जब भी इस तरीके से फैट परसेंटेज हम मिल्क में या मिल्क प्रोडक्ट में एडजस्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। हम मिल्क में फैट कंटेंट को स्टैंडर्डाइज करते हैं। और ये करते क्यों हैं? रीज़न क्या है? To conform to the legal requirements, because according to law, according to regulatory bodies, uh, certain milk products need to have a specific amount of fat content. फॉर एग्जाम्पल टोन मिल्क का फैट कंटेंट 3% होना चाहिए, डबल टोन मिल्क का फैट कंटेंट 1.5% होना चाहिए. सो दैट इज़ वाई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क इज़ डन. So, what is the definition of standardization? Standardization of milk refers to the adjustment, that is, raising or lowering of the fat or solid not fat percentage of milk to a desired value, so as to conform to the legal or other requirements prescribed. So, कई केसेस में हमें सॉलिड नॉट फैट कंटेंट भी मिल्क का एडजस्ट करना होता है. सो वी स्टैंडर्डाइज मिल्क, वी स्टैंडर्डाइज द फैट कंटेंट एंड सॉलिड नॉट फैट कंटेंट ऑफ द मिल्क अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे कैसे मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट में? Milk is standardized by the addition of milk or cream with a higher or lower fat percentage than that of the material to be standardized. जिस भी मटेरियल को मिल्क प्रोडक्ट को हमें स्टैंडर्डाइज करना है, उसमें हम या तो क्रीम ऐड करके उसका फैट परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, या मिल्क में से क्रीम को निकाल करके हम उसका फैट परसेंटेज कम कर सकते हैं. To solve the problem, it is necessary to find first relative amount of the original material, and second, standardizing material to be mixed together to give a product with the desired fat content. सिंपल शब्दों में, अगर हमें स्टैंडर्डाइजेशन करनी है मिल्क की, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारे पास है उसका फैट कंटेंट कितना है. दूसरा, जो फाइनल प्रोडक्ट हम बनाएंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें चाहिए, उसका फैट कंटेंट कितना होना चाहिए. द मोस्ट simple method and one of the most effective methods of standardization of milk is using Pearson's square rule method. Using Pearson's square method. Now, Pearson's square method can be used to calculate the relative quantities of the materials involved in a standardization problem. अब हम देखते हैं इसके बाद कि स्टैंडर्डाइजेशन थ्रू पियर्सन स्क्वायर मेथड यूज़ करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. सो लेट अस नाउ लुक एट द स्टेप्स इन पियर्सन स्क्वायर मेथड. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ स्क्वायर एंड प्लेस इन द सेंटर ऑफ इट द फैट परसेंटेज डिजायर्ड. सेकेंड, place at the left hand corners of the square the fat percentage of the materials to be mixed. Next, subtract the number in the center from the larger number at the left hand side on the square and place the remainder at the diagonally opposite right hand corner. Fourth point, subtract the smaller number on the left hand side from the number in the center
and place the remainder at the diagonally opposite right hand corner. And the fifth point is the numbers on the right hand side now represent the number of parts of each of the original materials that must be blended to make a product with a fat test given by the number in the middle of the square. So this is the first question of standardization of milk based on Pearson's square rule. The question says, how many parts by weight of 40% cream and 3% milk must be mixed to make milk testing 5% fat? So इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, that we will draw a square और उसके सेंटर में हम वो फैट परसेंटेज लिखेंगे जो कि हमें फाइनली बनाना है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ 5%. सो यहाँ हम 5% लिख देंगे. लेफ़्ट हैंड साइड पर हम वो फैट परसेंटेजेस लिखेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है. ठीक है, मिल्क और क्रीम जो हमें ऑलरेडी दिया जा रहा है उसका फैट परसेंटेज हम यहाँ लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव 40% cream having 40% फैट एंड मिल्क हैविंग 3% फैट. ये हमें दिया जा रहा है, ये हमारे पास है. सो वी विल राइट 40 हियर एंड 3 हियर. लेफ्ट हैंड साइड के दोनों कॉर्नर्स पे हम दोनों फैट परसेंटेजेस लिख लेंगे विच वी ऑलरेडी हैव. राइट हैंड साइड पर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर वी विल राइट 2 एंड 35. ये कहाँ से आया है, हम इसको डायगनली सब्ट्रैक्ट करेंगे. इन नंबर्स को डायगनली सब्ट्रैक्ट करके राइट हैंड साइड पर लिखेंगे. 5 - 3 = 2 एंड 40 - 5 = 35. इन दोनों को ऐड करके उसके बाद हम लिखेंगे 37. फाइन. सो ये जो पूरा पियर्सन स्क्वायर रूल का फिगर बन गया है, इसको देख करके वी कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन नाउ. आंसर वुड बी 2 parts of 40% cream when mixed with 35 parts of 3% milk will give 37 parts of 5% milk. यानी कि इस फिगर में राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ आई हैं वो पार्ट्स की वैल्यू हैं. 2 पार्ट हमें मिलाना होगा 40% फैट क्रीम और 35 पार्ट्स मिलाना होगा मिल्क हैविंग 3% फैट. और जब हम इस रेशियो में इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिलाएंगे तो हमें 37 पार्ट्स मिल्क का मिलेगा जिसमें कि फैट परसेंटेज होगा 5%. सो दिस इज़ हाउ we solve such a question using Pearson's square rule. Okay, so our second question is, how many kgs each of 28% cream and 3% milk will be required to make 500 kgs of a mixture testing 4% fat? इसमें भी हम सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और बीच में लिखेंगे जो फाइनल प्रोडक्ट का फैट परसेंटेज है, दैट इज़ 4%. लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे 28 यानी कि 28% क्रीम का एंड 3%. दिस इज़ 3% milk. Milk having 3% fat content and cream having 28% fat content. ये हमें दिया हुआ है. राइट हैंड साइड पर हम डायगनली सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज़ को लिखेंगे. 4 - 3 = 1 and 28 - 4 = 24.
we will add the two numbers and get 25. यानी कि 1 part of 28% cream, 1 part of 28% cream when mixed with 24 parts of 3% milk. 24 parts of 3% milk will give 25 parts of 4% milk. Will give 25 parts of 4% milk. 1 part of 28% cream when mixed with 24 parts of 3% milk will give 25 parts of 4% milk. तो यहाँ हमने अभी तक पार्ट्स तो निकाल लिए, पर क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी केजीज ईच ऑफ 28% क्रीम एंड 3% मिल्क. यानी कि हमें केजीज में भी क्रीम और मिल्क का अमाउंट निकालना है. सो हम इसको इजीली लिख सकते हैं एक प्रपोर्शन में 1:25 इज इक्वल टू C इज टू 500. 1:25 इज इक्वल टू C इज टू 500. यानी कि जो टोटल पार्ट है 25 का उसमें 1% क्रीम है. तो हम इसको ये मान सकते हैं जो टोटल पार्ट है 500 का उसमें जो C है वो फैट का यानी क्रीम का अमाउंट है. तो इसको बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो C की वैल्यू क्या आएगी? C इज़ इक्वल टू 500/25 इज़ इक्वल टू 20 kgs. यानी कि C की वैल्यू आ गई 20 kgs. और मिल्क की वैल्यू क्या होगी? मिल्क वुड बी 500 minus the cream, that is 20 kgs is equal to 480 kgs. So हमारा क्रीम का अमाउंट आया 20 kgs और मिल्क का अमाउंट आया 480 kgs.